So, good afternoon, everybody. And it is really a hope I'm audible. Sir, can you please confirm I'm audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay, okay, perfect. So, it is really a great pleasure to introduce my elder brother, Mr. Rajesh Chetan. In fact, first, I would really love to cover his formal introduction. Then, definitely, I would like to expose his informal personality as well because people love him like anything, and he's such a great personality. The words are in few words, it is very difficult to introduce him, right? So first, I would like to start his formal introduction. Rajesh Bhai is very famous with the name of Rajesh Chetan. He was born in Bhiwani. It is one of the city in Haryana, and he is a postgraduate with AMCOM. He has authored so many books and kritis like Kargil ki Humkar, Bharat Bharat ko rehne do, Banwasi Ram, Sankhnaad, Rang de Basanti, Tiranga, Setuband, Tedi Baat hai, Seedhi Saadi Baat hai. There are a lot of things he has created over his life journey, and he's the person. He has told his all poems and everything to different countries also. So he visited like Britain, France, America, Oman, Canada, Thailand, China, and a lot of other countries, where he put our Indian flag at the top of the world. In his life journey, he started his first journey as a poet in 1989 when he did his first reading in Hasi, Haryana. Then he got a lot of opportunities at different platforms, and one of the major was he did it in at Lal Killa Red Fort at the Ganatantra Divas. He read the poem from the Lal Killa also. Then he was selected for different awards from Bharatiya Sahitya Parsad, and then Hindi Samiti London, Purushottam Pratik Puruskar, Sahitya Bharati, Sanskar Bharati, Sanskriti Manch, Rajasthan Sahitya Kala Sanskriti Sansthan, and then in Panipat he was honored with the Kalamdansh Puruskar. Then he was also awarded at Manas Manch Kanpur, then Rohini Citizen Award, then Babu Mahavir Prasad Jain Smriti Award, Vash Panorama Patrika Award, Indraprasth Kaviratna Award, Bharat Yogi Sarvottam Award, Rotary Hindi Seva Award, Haryana Gaurav Samman, and Atal Ambassador of Humanity Awards. So, friends, you can see that there's a huge list of awards he has got, and that happens as a being a poet, right? And he has already participated in more than 3,000 programs in his life till now. He is guiding lot of organizations who are working for society as a whole for the benefit of society. Like he's the president of Sanskar Bharati, and then he's the founder president of Bhiwani Parvar Maitri Sangh. He was the main minister for Rashtriya Kavi Sangam. Then he's the president of Chetna, which is a trust which is doing for the welfare of business community, right? Then he is the member of Hindi Salahkar Samiti. Apni Delhi is a newspaper, and he's advisor to Parampara Kavya Goshti. He is the founder he's the founder of Pragati Pratik, Bharatiya Dharwar, advisor to Agrawal Mitra Parishad. He is the founder president of FPRD, which is Financial Professional Roundtable, an organization who is working for the financial professional fraternity. And he's the director to Insurance Plus and the director to one of the company which is very big and famous company, Agrawal Packers and Movers Limited. He's the member of Censor Board, the Film Censor Board. So this is the formal introduction of Rajesh Bhai. But if I talk about informally, like he is someone where everybody loves him and his life is just for others. So wherever he get an opportunity to contribute in anybody's life, he is always there. So for the full day, like I see always running, I see him always running for for different purposes, which is the purposes for the life of others, right? So he is such a great contributor to all of us, and I'm in touch with him since last 10 years, and I have seen him very close. His family is amazing. His son, the daughter-in-law, like people are completely amazing, and I'm really blessed to have him in my life. And I pray to God
like for his long life and for his success and growth. And like lastly, he just came out from the COVID-19. So he suffered with COVID, and God is so kind to us. He has come back in our life, and like we are so happy about it. So this is the brief introduction of Rajesh Bhai. He's always for us. So I really welcome on the behalf of the Federation and everyone who is there, all the dignitaries, all the participants. I really welcome Rajesh Bhai. Rajesh Bhai, most welcome. Please come and bless us with your speech. थैंक यू बहुत बहुत लंबा चौड़ा परिचय दे दिया आपने मेरा। पंकज जी, आपको धन्यवाद हमारे फेडरेशन की तरफ से। फ्रेंड्स, हम तो बहुत, ये तो बहुत गर्व की बात है। समटाइम्स वी थिंक ऑफ अभिकर्ता क्या बन सकता है। राजेश भाई, आप इससे भी बड़ा डिजर्व करते हैं। यस सर, अभिकर्ता क्या बन सकता है, मेरे ख्याल आता है अभी अभिकर्ता बनना चाहिए तो कैसा बनना चाहिए, हमारा राजेश चेतन जी से जैसा बनना चाहिए। इनमें अगर हम 5% भी बन गए तो बहुत परिवार और जो भी हमारा कम्युनिटी में है पूरा, तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। सर, as a mark of respect, as a token of our respect to you, we have made a small video I would like to share. कि So here, this is the brief presentation. Even if you go to his Facebook page or Twitter, Instagram, you will find tons of information about Rajesh Chechanji. Now I request Rajesh Chechanji to go ahead with the talk on insurance marketing in a holistic way. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. स्टार्ट करें सर? स्टार्ट करें? यस सर, कर सकते हैं सर आप। ओके। मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का किन शब्दों में धन्यवाद करूं। कितना अच्छा वीडियो बनाया है। पंकज अग्रवाल जी ने जितना बड़ा परिचय दे दिया उतना बड़ा मेरा परिचय नहीं है, और इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं। केवल मैं 89 से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जुड़ा हूं। पिछले 12 साल से MDRT हूं, LIC का और जनरल इंश्योरेंस का काम करता हूं। और जनरल इंश्योरेंस में मेरे पास लगभग इस समय 5 करोड़ रुपए का प्रीमियम है। तो ये मेरा थोड़ा सा बिजनेस का भी परिचय मैं आपको दे रहा हूं। मैं हिंदी में बात करूंगा और मुझे उन मित्रों से क्षमा मांगनी है जो हिंदी नहीं समझते हो।
कोई ऐसे मेरे दोस्त यहाँ पर हैं क्या जिनको हिंदी नहीं आती है? एक सब बार समझ चैट सकते को हैं। जी। एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, आई होप एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। अदा अदा अदा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हिंदी सब समझते हैं। मैं अभी कोविड से लड़के आया हूँ, जैसा कि पंकज ने आपको बताया। मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रहा, गंगाराम दिल्ली, और अब 15 दिन से घर पे हूँ। और आज मेरा ये पहला लेक्चर है कोविड से लौटने के बाद। तो आज मैं एक नई जर्नी फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी जिंदगी की। तो मैं आज बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए। लोकेश जी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। सत्येंद्र शाह साहब उपस्थित हैं, चंद्रशेखर जी जिन्होंने मेरा स्वागत किया था, और विकास भारद्वाज जो सेतु हैं मुझे फेडरेशन से जोड़ने वाले। आज विकास भारद्वाज जी का जन्मदिन भी है, तो मैं विकास भारद्वाज जी को जन्मदिन की बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए साहब, मैं पब्लिक स्पीकर हूं। मुझे भीड़ में, ऑडिटोरियम में, बड़े बड़े लोगों के बीच में बोलने की आदत है। ये जूम के ऊपर डिजिटली मुझे बोलने का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब सामने कोई है ही नहीं तो क्या बोलना, मुझे कोई आनंद नहीं आता बोलने में। आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा 50-50 कर सकते हैं, क्योंकि आप मुझे दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, पर आप चैट बॉक्स में कुछ लिख देंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी ऑडियंस मुझे सुन रही है, मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो आपके किसी काम की है। तो अपनी प्रेजेंस का मुझे एहसास करवाइएगा। चैट बॉक्स मेरे ख्याल से ओपन होगा फॉर ऑल, अगर नहीं है तो कर दीजिए। सर मैं चाहूंगा लोकेश जी चैट बॉक्स आप ओपन कर दें। चैट बॉक्स ओपन है सर, और फॉर ऑल, अभी आपको सर दर्शक जो भी है वो आप देख सकते हैं पूरा दर्शक। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। तो मुझे थोड़ा सा ऑडिटोरियम की जैसी फीलिंग आनी चाहिए। यस सर, और वो यू कैन आप सी लोग आवर बहुत, पीपल सर, हाँ, यू कैन सी आवर ग्रेट पीपल। ग्रेट 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 ग्रेट। और दोस्तों आज हम थोड़ा सा बात करेंगे मार्केटिंग की। और हम सब मार्केटिंग वाले लोग हैं, मार्केटिंग ही करते हैं, तो मैं इसमें कोई नई बात आपको बताने वाला नहीं है। इतने इतने अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं क्या नई बात बताऊंगा। पर मुझे कुछ कहा है बोलने के लिए तो मुझे कुछ बोलना है। अच्छा तो ये होता आप मुझे कहते कि राजेश जी कुछ कविताएं सुनाओ, पर मुझे कविता के लिए नहीं कहा गया, मुझे कहा है कि मार्केटिंग के बारे में बोलिए, क्योंकि आप लोग स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो साथियों आइए थोड़ी सी बात मार्केटिंग की कर लेते हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है, तो उसमें तो भारत का कोई मुकाबला नहीं है, हम चीन के बाद नंबर 2 हैं। और दोस्तों मार्केटिंग वहीं हो सकती है जहां ज्यादा लोग हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप भारत में रहते हैं जहां विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। दूसरा मैं आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं, केवल कोविड में एक बिजनेस आपका है, इंश्योरेंस का। कपड़े वाले से बात करो, बिजनेस खत्म हो चुका है। आप बात करिए किराने वाले से, काम नहीं है। बैंकट वाला खाली बैठा है, होटल वाला खाली बैठा है। एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री है जिसका काम चल रहा है और आगे भी चलने वाला है। इसलिए आप लकी हैं और ब्लेस्ड हैं कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं। सारी दुनिया में इस समय मंदी है, लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री अपने ठीक ग्रोथ के साथ काम कर रही है। देखिए दोस्तों एक बात समझ लीजिए, पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पैसा कमाने के लिए 2 काम करने होते हैं, या तो प्रोडक्शन कीजिए या डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, उसी से पैसा बनता है, उसी से पैसा जनरेट होता है। किसान खेत में
हल चलाता है, फसल उगाता है और उससे पैसा कमाता है। प्रोडक्शन जो करते हैं उनको सेल्स भी करनी पड़ती है, एक बात समझ लीजिए। फैक्ट्री में कोई चीज आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसको सेल भी करना होता है, उसको बेचना भी होता है। तो इसका मतलब पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ बेचना जरूरी है। कैसे बेचे, कहां बेचे, बस यही मार्केटिंग है, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब अगर हमको कोई चीज सेल करनी है, कोई चीज की मार्केटिंग करनी है, तो हमको लोग चाहिए, खर्च चाहिए, जनता चाहिए। तो दुनिया में मार्केटिंग का जो फंडा है उसको समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। वो 3 सर्किल में मूव करता है। 3 सर्किल जिसके समझ में आ गए उसके मार्केटिंग समझ में आ जाएगी। ये 3 सर्किल कैसे हैं? तो पहला सर्किल जिसको मैं कहता हूं होल्ड सर्किल। होल्ड सर्किल कौन सा होता है दोस्तों? जिसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट 20, 30, 40, 50 लोग होते हैं, और कोई बहुत बड़े लोग होते हैं तो उनके पास 100 होते हैं, 150 होते हैं। एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपके बेटे की या आपकी बेटी की रिंग सेरेमनी है। तो रिंग सेरेमनी में आप जितने लोग इनवाइट करेंगे वो आपकी लाइफ का होल्ड सर्किल माना जाएगा। होल्ड सर्किल। इसके बाद एक सर्किल इसके आगे होता है जिसके अंदर नॉर्मली 400-500 लोग होते हैं, कुछ बड़े लोगों के 1000-1500 लोग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वार्म सर्किल। वार्म सर्किल का मतलब वे लोग, अब आपके मान लीजिए बेटे की रिंग सेरेमनी हो गई है और आपके बेटे की या बेटी की शादी होनी है। उस शादी में जितने कार्ड आप, इनविटेशन कार्ड आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो आपका हुआ वार्म सर्किल। या यूं भी कह सकता हूं कि आपके मोबाइल फोन में जितने नंबर आपने सेव किए हैं वो आपका वार्म सर्किल है। आप लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं ना? मेरे साथ है ना आप लोग? कुछ चैट बॉक्स में कुछ लिखा नहीं जा रहा? क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, यस सर। आप कुछ बोलते रहिए, चुप मत बैठिएगा, कुछ बोलते रहिएगा। एक ये सर्किल है वार्म सर्किल। और इसके बाद एक बड़ा सर्किल है जिसमें 7 अरब की दुनिया है, जिसको बोलते हैं कोल्ड सर्किल। कोल्ड सर्किल का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपके पास कोल्ड कॉल आती है, लोन लेंगे, घूमने चलेंगे, इंश्योरेंस लेंगे, ये आपका उसका कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी वो आपको कॉल कर रहा है। इसका मतलब वो कौन सा सर्किल है? वो सर्किल है जिसको बोलते हैं कोल्ड सर्किल। मार्केटिंग का एक ही मतलब है, कोल्ड सर्किल से लोगों को लाइए किसमें? वार्म सर्किल में, और वार्म सर्किल से लाइए हॉट सर्किल में। उदाहरण के लिए 3 दिन पहले लोकेश केसी कौन है मैं नहीं जानता था, तो इसका मतलब लोकेश केसी मेरे कोल्ड सर्किल में थे। उन्होंने मुझे फोन किया कि राजेश चेतन जी आपको हमारी फेडरेशन में आके बोलना है। मैंने कहा सर आता हूं। और मेरी इनके साथ 2 बार टेलीफोन पे बात हुई, और आज इन्होंने मेरा इतना मान सम्मान किया, मेरा वीडियो दिखाया, मेरा बहुत लंबा चौड़ा पंकज जी ने इंट्रोडक्शन दिया। तो मैंने क्या सोचा कि अब लोकेश जी कहाँ रहने चाहिए? वार्म सर्किल में आ गए। और 4 बार इनकी मेरी और बातचीत हो गई, और घर में आना जाना हो गया। जैसे जो रिश्ता मेरा पंकज अग्रवाल से है, मेरा परिवार, घर, रिश्ते सब जानते हैं पंकज को। मान लीजिए लोकेश जी साल में 2 साल में पंकज वाले सर्किल में आ जाएं, तो कहां आ गए? होल्ड सर्किल में। मार्केटिंग ये कहती है कि धीरे धीरे कोल्ड सर्किल से लोगों को लाइए वार्म सर्किल में, और वार्म सर्किल से लोगों को लाइए हॉट सर्किल में। तो आप देखेंगे कि आपका मार्केटिंग का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दोस्तों 2 शब्द हैं, एक शब्द है कस्टमर और एक है क्लाइंट। मार्केटिंग में इन दोनों को अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। कस्टमर और क्लाइंट एक जैसे शब्द नहीं है,
दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है। मैं बताता हूं क्या अंतर है। कस्टमर वो है जो बेचारा कष्ट में मरता है, जो किसी का भी नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, आपकी पत्नी ने आपसे कहा टमाटर लेके आओ, अब पत्नी कहे तो आपकी कहाँ हिम्मत की आप मना कर दोगे? आपको तो टमाटर लाना ही पड़ेंगे। आपने घर से थैला उठाया, बैग उठाया और आप टमाटर लेने गए। बाहर गए तो 4-5 ठेले के ऊपर टमाटर बिक रहे हैं। आपने अपना टमाटर देखे, बार्गेनिंग की और एक ठेले वाले से आपने टमाटर लिए और घर आ गए। पत्नी ने टमाटर काटे, टमाटर खराब निकले, उसमें कीड़े निकले। आपको डांट पड़ी, धमकाया आपको कि आपको कुछ लाना आता है नहीं है, बने घूम रहे हो इतने बड़े एजेंट, बने घूम रहे हो फेडरेशन के प्रेसिडेंट, टमाटर लाने भी नहीं आते, वापस करके आओ। और आप क्या करेंगे? घर में आपको शांति चाहिए तो टमाटर वापसी करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? आप टमाटर वाले के पास गए, भाई साहब तेरे टमाटर में कीड़े निकले हैं। टमाटर वाला भी उस्ताद था, बोला भी अपना अपना भाग गए। कल एक की तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल निकली थी, मैं क्या करूं इसके अंदर? तुमने भाव तोल कर लिया, टमाटर छांट लिए, देख लिए, भाल लिए, मैं क्या कर सकता हूं? वो टमाटर वापिस नहीं लेगा। इसको बोलते हैं कस्टमर। कस्टमर वो किसी का भी नहीं होता है, एक होता है क्लाइंट। क्लाइंट का एग्जांपल से समझाता हूं। आपके दादाजी की शादी में जिस ज्वेलरी की दुकान से आपने गोल्ड परचेज किया था, आपके पिताजी की शादी में भी उसी दुकान पे जाकर आपने ज्वेलरी ली। और जब आपकी शादी हुई तो आपके पिताजी भी वो ज्वेलरी लेने उसी दुकान पर गए। और आपके बेटे के शादी में भी ज्वेलरी आप उसी दुकान से परचेज करेंगे। ये जो रिश्ता है पीढ़ी दर पीढ़ी का, इसको बोलते हैं क्लाइंट। मार्केटिंग में कस्टमर नहीं बनाने, क्लाइंट बनाने हैं, क्लाइंट। और क्लाइंट तब बनेंगे जब आप लोगों को वार्म सर्किल से हॉट सर्किल में लाना शुरू करेंगे। वो कब होगा दोस्तों? एक एक चीज समझते जाइएगा, वो कब होगा? लोगों से मिलते रहिए। हमारा बिजनेस इंश्योरेंस का एक ही है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। एक फिल्म आई थी जिसमें कहा गया था विद्या बालन में, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक ही फंडा है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। आप मीटिंग नहीं कर सकते तो क्या करें? वीडियो मीटिंग एक ही रास्ता है। आमने सामने जाके नहीं बैठ सकते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप भी तो ऐसे क्लाइंट से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मीटिंग जब होती है, इसको समझिए, आप किसी से मिलने जाएं या कोई आपसे मिलने आए, मीटिंग तो होगी। जब भी मीटिंग होगी उसके पीछे 3 रीजन होंगे। बात को समझिएगा, जब भी कोई मीटिंग होगी उसके पीछे 3 कारण से ही मीटिंग होगी। कौन कौन से कारण है? पहला है भाव, दूसरा है अभाव और तीसरा है प्रभाव। पहला है भाव, दूसरा है अभाव और तीसरा है प्रभाव। इनको भी समझाने का प्रयास करता हूं। कोई आपसे भाव में मिलने आए, भाव का मतलब क्या होता है? आप भगवान की आरती कर रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो आप भाव में हैं। कोई भाव में आपसे मीटिंग करे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप उससे प्यार कीजिए, उससे लव कीजिए। कोई अभाव में, यानी कि कोई प्रॉब्लम में आपसे मीटिंग करना चाह रहा है, उसकी मदद कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, उसकी जो वो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। और तीसरा कारण होता है प्रभाव, यानी कि समाज में आपका इतना बड़ा शिक्षा हो गया है, इतना बड़ा नाम हो गया है कि अब लोग आपसे प्रभावित होकर, लोग आपसे इंप्रेस होकर आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान का धन्यवाद कीजिए, उस परम पिता का धन्यवाद कीजिए कि अब आप ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जिससे समाज के लोग प्रभावित होकर मिलना चाहते हैं। तो कोई भी मीटिंग जब होगी उसके 3 कारण होंगे, भाव, अभाव और प्रभाव। लेकिन दोस्तों ये तीनों कारण से पहले एक बात को संभाल लेना कि भाव, अभाव, प्रभाव ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है स्वभाव। स्वभाव का मतलब है नेचर।
आप मार्केटिंग के बिजनेस में है, मार्केटिंग स्किल आपके अंदर है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका स्वभाव को चेक करो। स्वभाव को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचर। नेचर तो क्या कभी लिस्ट बनाइए, कागज पेन लेकर बैठिए और लिखिए, क्या इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में क्या ऐसे 10, 20, 50 लोग हैं क्या जो मेरे नेचर पर सिग्नेचर कर सकें। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या इस धरती पर ऐसे कुछ लोग हैं क्या जो आपके नेचर पर, जो राजेश चेतन के नेचर पर, जो लोकेश केसी के नेचर पर, जो वीरेंद्र शाह के नेचर पर, जो चंद्रशेखर जी के नेचर पर सिग्नेचर कर सके? ऐसे लोग हैं क्या? अगर इस धरती पर 10-20 ऐसे लोग हैं तो आप सच में मार्केटिंग के बादशाह हो, जो आपके नेचर पर सिग्नेचर करने वाले लोग हैं। जो नेचर पर सिग्नेचर कर देगा वो प्रपोजल फॉर्म पे सिग्नेचर भी कर देगा। बात को ध्यान से समझिए। अपनी पत्नी से भी पूछ लेना जब ये लिस्ट बनाओ, तो डार्लिंग क्या तू मेरे नेचर पर सिग्नेचर कर देगी क्या? हो सकता है वो ये कहे कि मेरे पिताजी की गलती है, मैं आपके नेचर पर कभी सिग्नेचर नहीं कर सकता। तो इसको चेक करना कि ऐसे कितने लोग हैं जो आपके नेचर पर सिग्नेचर कर सके। दोस्तों एक बात और कह दूं साथ साथ में, नेचर जो बनता है वो सत्संग से बनता है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में किस प्रकार के दोस्त हैं, आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक बात ये समझ लीजिए, सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो 4 तरह के लोग हैं। 4 तरह के लोग हैं। कौन कौन से हैं? पहले हैं कैटल, दूसरे हैं मेटल, तीसरे हैं बैटल और चौथे हैं सेटल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले है कैटल, दूसरे हैं मेटल, तीसरे हैं बैटल और चौथे हैं सेटल। समझाने की कोशिश करता हूं। कैटल का मतलब है पशु, जो सुबह से शाम तक केवल खाना 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 खाना, निर्मल बाबा के चेले होते हैं। इनको भोजन में बड़ा रस आता है, खाने में बड़ा स्वाद आता है, बस ये खाने में लगे रहते हैं। इनको बोलते हैं कैटल। दूसरे होते हैं मेटल। मेटल यानी कि मटेरियल, ये पैसे के अलावा कोई सोच नहीं रखते, हमेशा पैसा 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 पैसा, पैसे में ही उलझे रहते हैं। तीसरे होते हैं बैटल, जो सुबह से शाम तक झगड़ा करते हैं। सुबह चाय पर पत्नी से झगड़ते हैं, फिर ड्राइवर से झगड़ा करेंगे, ऑफिस में आएंगे स्टाफ से झगड़ा करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे तो स्टाफ से झगड़ा करेंगे। सारा दिन झगड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। इनको बोलते हैं बैटल। मार्केटिंग का जो सूत्र है उसमें ना तो चलेगा कैटल, ना चलेगा मेटल, क्योंकि जब आप मेटल में रहते हैं तो लोग आपको पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं। और ना चलेगा बैटल, यहाँ चलेगा सेटल। तुम भी जिंदा रहो, मैं भी जिंदा रहूं, मेरी बात तुम सुनो, तुम्हारी बात मैं सुनूंगा, कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूं। जो झगड़ा नहीं करते हैं, जो सेटल मोड में रहते हैं मार्केटिंग में, वो लोग सफल होते हैं। तो इंश्योरेंस का फंडा ये है कि हमको सेटल में रहना सीखना होगा। और ये कैसा सीखना होगा दोस्तों? इसके लिए मैंने कहा था आपको कि दोस्ती आपकी किन लोगों में है, कैसे लोगों से आपकी दोस्ती है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके मोबाइल फोन में जितने नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त भी 4 तरह के दोस्त आपको मिलेंगे। कौन कौन से दोस्त मिलेंगे दोस्तों, मैं बताता हूँ। पहले वाले हैं थाली मित्र। थाली मित्र जो आपकी थाली तक की दोस्ती रखते हैं, आपके साथ चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे, बस आपकी वो दोस्ती यहाँ तक रखते हैं, इससे आगे दोस्ती को नहीं बढ़ाते हैं। जब मैं आपको ये बता रहा हूं तो आपके दिमाग में फिल्म चलने लगी होगी, पिक्चर आने लगी होगी, कौन सा दोस्त कहाँ बैठा है। दूसरे होते हैं प्याली वाले, प्याली मित्र। प्याली का मतलब उनको 7 बजे याद आती है, आजा भैया 2-2 पैक लगाते हैं, उसको बोलते हैं प्याली मित्र। तीसरे होते हैं ताली मित्र। किसी तरह से आपकी तारीफ करके, आपकी प्रशंसा करके, आपको बहलाकर फुसलाकर अपना काम निकालेंगे
और कभी भी लौट कर नहीं आएंगे, पीठ दिखा के चले जाएंगे, उनको बोलते हैं साली मित्र। और चौथे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको बोलते हैं माली मित्र। माली कौन होता है? माली जंगल को काट पीट के, वन को काट पीट के, फॉरेस्ट को काट पीट के और वो उपवन बना देता है। और आपके जीवन में अगर 4-5-6 माली मित्र हैं तो आप मार्केटिंग में सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। इसलिए कुछ अपने पास माली मित्र रखिए जो आपकी देखभाल कर सकें, जो आपको संभाल सकें। और आप बहुत लकी हैं कि आपके पास फेडरेशन जैसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे माली मित्र हैं जो आपकी चिंता कर रहे हैं, जो आपके स्किल डेवलपमेंट की चिंता कर रहे हैं। आपके पास ऐसे दोस्त हैं, तो फेडरेशन के साथ बने रहना, मिलकर जब साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। तुलसीदास ने कहा भी है, संघे शक्ति कले युगे, कलयुग में संगठन में शक्ति होती है। हम सब मिलकर जब चलेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। मित्रों, आपके जो माली मित्र हैं उसमें से एक मित्र मैं आज आपसे चर्चा करता हूं, और वो मेरा ये मान्यता है, आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कि एक आज जब हमारी आज का सेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले गणेश जी को याद किया गया। अगर हमने अपने मित्रों की सूची में पहला नाम गणेश जी का लिख दिया है, अगर हमने गणेश जी को अपना मित्र बना लिया, तो आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, मार्केटिंग में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। आप ये कह सकते हैं गणेश जी से दोस्ती कैसे करें, वो तो बात ही नहीं करते हैं, वो तो बोलते ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाभारत का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। महाभारत में द्रोणाचार्य के एक शिष्य हुए एकलव्य। एकलव्य ने क्या किया? द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को उसने कहीं लगाया और उस मूर्ति को प्रणाम करके उस मूर्ति के सामने वो धनुष बाण चलाना सीखने लगा। और आप जानते हैं वो दुनिया का अर्जुन से भी बड़ा धनुधारी बना। उसी प्रकार से यदि आपने एकलव्य की तरह गणेश जी को अपना देवता माना, मेरे हिसाब से मार्केटिंग का कोई सबसे बड़ा देवता हो सकता है तो वो है गणेश जी। अगर आपने गणेश जी के रूप को समझ लिया तो मार्केटिंग आपके भीतर अपने आप आ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। आपको कैसा लग रहा है मुझे थोड़ा बता दीजिए। अब तक आपको कुछ समझ में आ रहा है मेरी बातें या नहीं आ रही है? मैं नहीं जानता कि मैं कहीं आपका समय तो नहीं खराब कर रहा हूँ। आपकी कोई प्रतिक्रिया मुझे नहीं मिल रही है कि आपको कितना एक अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो मैं यूं ही बोले जा रहा हूँ। सर, यू आर गोइंग वेल। जैसे आपने कहा गणेश जी का, it's we have shared your PPT also. It's a really wonderful concept. We are eagerly waiting to hear you. जी, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, गणेश जी के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो गणेश शब्द है, गणपति, भारत को कहते हैं भारत गणतंत्र है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था दोस्तों, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, रिपब्लिक बना। जो ये गणतंत्र शब्द है, ये भारत सरकार ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने गणेश जी से लिया है, गणेश जी से क्वाइंट किया है। गणपति, गणपति का मतलब गणेश, और गणेश से गणतंत्र। गणपति कौन होता है? गण का मतलब होता है एक समूह, समूह का मतलब एक छोटा सा कबीला, छोटा एक मोहल्ले का जो सरदार है वो, इसको बोलते हैं गणपति। गणपति। तो आप आज लोकतंत्र है भारत में, जिसको ये समझ सकते हैं कि आप एक घर में, घर के प्रमुख हैं, घर के हेड हैं, आप एक घर के अंदर 5, 7, 10 मेंबर हैं, उसके हेड है, तो आप अपने घर के कौन हो गए? आप घर के गणपति हो गए। अब ये मोहल्ले के आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप मोहल्ले के क्या हो गए? गणपति हो गए। आप एमएलए हो गए, तो आप अपनी एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी के गणपति हो गए। आप सांसद हो गए, तो 1 डिस्ट्रिक्ट के, 2 डिस्ट्रिक्ट के, 3 डिस्ट्रिक्ट के आप गणपति हो गए।
और आप यदि देश के प्रधानमंत्री हो गए तो आप पूरे देश के गणपति हो गए। तो पहला काम तो ये है कि हम गणपति हैं, तो हमको जो भी एरिया मिला है, एक घर में अगर हम गणपति हैं, जैसे फेडरेशन है, तो फेडरेशन वीरेंद्र शाह जी और लोकेश जी ये कौन हुए? हमारी फेडरेशन के गणपति हुए, गणपति हुए। तो ये पहले तो समझिए कि गणपति वो है जो एक समूह को, एक कबीले को, एक मोहल्ले को, एक एसोसिएशन को जो लीड करता है वो गणेश है। लीडरशिप का जो सिंबल है वो गणपति है। मार्केटिंग का जो सिंबल है वो गणपति है। तो गणपति के कुछ खूबियां आइए, आप सब थोड़ी देर के लिए मेरे मन के अंदर गणेश जी का फोटो, गणेश जी का चित्र लेकर बैठिए और फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मार्केटिंग गणेश मनसा, मैं इसकी बात आप लोगों से कर रहा हूं। तो गणेश जी का सबसे पहले देखिए सिर बहुत बड़ा, इसका मतलब बिग, बिग बड़ा सिर है। थिंक बिग, बड़ा सोचिए। किसी ने कहा है कि छोटी सोच और पांव की मोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो आप बड़ा सोचेंगे, बड़े टारगेट रखेंगे, बड़ा काम करेंगे, बड़े लोगों से मिलेंगे। तो बड़े सिर का मतलब है जब बड़े लोगों की बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है, आप जब बड़े सोच के साथ जिएंगे तो बड़े प्रॉब्लम्स को भी हल कर पाएंगे और एक आपके पास बहुत बड़ा होल सर्किल बनना शुरू हो जाएगा बड़े लोगों का। तो गणेश जी का बड़ा सिर का मतलब एक ही है, थिंक बिग। आप मार्केटिंग में है तो ऊंचा, आप बड़ा सोचिए, बस ये इसका मतलब ये है। उसके बाद आइए आप देखेंगे कि गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं, कान बहुत बड़े बड़े। इसका मतलब क्या है? आपको लिसनिंग ज्यादा करनी है, सुनना ज्यादा है। मार्केटिंग के लोगों की प्रॉब्लम दूसरी है। मार्केटिंग के लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जब भी वो अपने आप को कहते हैं हम कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंट, और कंसल्टेंट होने के बाद वो जाके अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बिहेवियर कौन सा करते हैं? सेल्समैन का। दोनों में फर्क है। सेल्समैन को अपना प्रोडक्ट बाय हुक और बाय क्रुक बेचना होता है। कंसल्टेंट को सामने वाले की नीड को समझना होता है। एक डॉक्टर जो होता है वो कंसल्टेंट होता है, सेल्समैन नहीं होता। डॉक्टर क्या करता है? आपसे ज्यादा सवाल पूछता है, डॉक्टर खुद कम बोलता है। हमारी प्रॉब्लम दूसरी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री वालों की। इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाला क्या करता है? खुद ही बोलता रहता है, क्योंकि वो सेल्समैन बन के जाता है, भीतर से वो कंसल्टेंट होता है। आप ये बात ध्यान रखिए, गणेश जी क्या कहते हैं? बड़े बड़े कान, कंसल्टेंट को ज्यादा सुनना होता है, बोलना कम होता है। तो मार्केटिंग का यही स्किल है। मार्केटिंग में जाके जब भी आप प्रोस्पेक्ट के सामने जाएंगे, आप उसकी बात को ज्यादा सुनेंगे, अपनी बात को कम कहेंगे। मैं अपना सूत्र आपको बताता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ। मैं जाता हूँ सामने वाले के पास, प्रोस्पेक्ट के पास या अपने कस्टमर और क्लाइंट के पास, तो मैं जाके एक ही बात कहता हूँ, सर आपने ये शोहरत, इतनी दौलत आपने इकट्ठी की है, आप आज शहर के नंबर 1 आदमी हैं, आपने ये अरबों रुपया इकट्ठा किया है, आपके पास आज इतने लोग काम करते हैं, ये सारा आपने कैसे किया? बस एक सवाल पूछना है। इसके बाद वो आदमी अपनी बात शुरू करता, पूरी कहानी सुना देता है। हम 4 भाई थे, गांव में रहते थे, कुछ हमारे पास था नहीं, पिताजी बड़े गरीब थे, क्योंकि हर अमीर की यात्रा गरीबी से शुरू होती है। वो पूरी कहानी अपनी सुनाता है। तो जब वो सुनाता है तो बस अपने को सुनना है तो जब वो बिल्कुल खाली हो जाएगा तो फिर अपनी बात सुन लेगा, और अपनी बात सुनेगा तो कुछ मार्केटिंग होगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। इसलिए गणेश जी के बड़े बड़े कान ये कहते हैं कि मार्केटिंग के लोगों को बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। इसका एक उदाहरण समझना हो तो भारत में एक प्रधानमंत्री रहे 10 साल तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे, चुप रहते थे। कोई आदमी चुप रहकर भी 10 साल कामयाब प्रधानमंत्री रह सकता है, इससे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा नहीं।
और इसका उल्टा भी उदाहरण है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, वो हमेशा बोलते ही रहते हैं, बोलते रहते, चुप ही नहीं होते। तो अपने को मार्केटिंग में ये डिसाइड करना है कि अपने को गणेश जी से क्या सीखना है। बड़े बड़े कान हैं, और बड़े बड़े कान ये कहते हैं ज्यादा सुनो, ज्यादा सुनो, ज्यादा सुनो, लिसनिंग, लिसनिंग, लिसनिंग। मार्केटिंग का एक ही सूत्र है, लिसनिंग, लिसनिंग, लिसनिंग। एक बात ध्यान रखिए। इसके बाद आप देखेंगे कि गणेश जी की आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, आंखें बहुत छोटी छोटी हैं। इसका मतलब क्या? एक हाथी जब सड़क पर चलता है तो हाथी की छोटी छोटी आंखों से भी उस हाथी को सड़क पर चलती हुई चींटी भी दिखाई पड़ती है दोस्तों, चींटी भी दिखाई पड़ती है। इसका मतलब मार्केटिंग में क्या करना है? छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। मार्केटिंग का सर्विस है, सेवा है, कोई क्लेम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ग्राहक का स्कूटर का भी, टू व्हीलर का क्लेम भी सेटल होना चाहिए। मेरा ग्राहक अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो मैंने क्या प्री एंड पोस्ट का जो पेपर वर्क है वो समय पर कर उसका क्लेम सेटल करवाया क्या? छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम। एक बात ध्यान रखिए, छोटे छोटे काम। और एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूं, हनुमान चालीसा की एक लाइन है जो शायद तुलसीदास जी ने बीमा एजेंट के लिए ही लिखी है, तो उसमें कहते हैं हनुमान चालीसा में, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वेको आतुर। बीमा एजेंट कैसा होना चाहिए? विद्यावान, पढ़ा लिखा होना चाहिए, गुणी, गुणी होना चाहिए, और चतुर, अति चातुर। बात समझिए, क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारा जो क्लाइंट है, वो ऑलरेडी चतुर है। हमने उसको सर्व करना है, उसको समझाना है, तो हमको क्या बनना पड़ेगा? अति चातुर। उससे तेज बनना पड़ेगा, उससे फास्ट बनना पड़ेगा, तब हमारी बात सुनेगा वो। और आखिरी में कहा है, राम काज कर वेको आतुर। कहा है कस्टमर इज गॉड, ग्राहक ही भगवान है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसकी सेवा में, उसकी छोटी छोटी सेवा में एड्रेस चेंज करवाना है, एंडोर्समेंट करवाना है। कोई काम उसका हमारी आंखों से बचना नहीं चाहिए। उसकी पॉलिसी समय पर रिन्यू हुई क्या नहीं हुई, उसकी चिंता करनी है। समय पर पॉलिसी पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, कोरियर सर्विस बंद है तो मैंने क्या पॉलिसी ईमेल की है उसको। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम, छोटी आंखों से सब कुछ दिखना चाहिए गणेश जी की तरह। उसमें इतने बड़े बड़े लेंस लगे हैं कि वो सब कुछ दिख रहा है। हमारे पास जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, क्या मैं उनकी चिंता करता हूँ? हमारे समाज के जो छोटे छोटे आदमी हैं उनकी चिंता करता हूँ? मैं जाता हूँ बीमा कंपनी में, वहां जो छोटे कर्मचारी हैं, 4th क्लास के एम्प्लॉई हैं, क्या कभी मैंने उनसे पूछा आपकी हालचाल क्या है? ये दोस्तों बहुत जरूरी है। इसलिए इन छोटी छोटी आंखों से बड़ी बड़ी चीजों को देखते रहिएगा, तो मार्केटिंग में आप अपने आप कामयाब होते चले जाएंगे। ये बात गणेश जी की छोटी आंखों से हमको संदेश मिलता है। दोस्तों, गणेश जी का बहुत बड़ा नाक है। नाक इज्जत का प्रतीक है। कहते हैं नाक कट गई तो इज्जत गई। नाक का मतलब इज्जत, नाक का मतलब सम्मान। तो आपका जो बिजनेस है, आप इसमें ये मानिए कि आपकी ब्रांडिंग, आपका नाम तब होगा जब लोग आपकी सर्विसेज को लेकर आपस में बात करेंगे। पंकज अग्रवाल, क्या एक्सेलेंट सर्विस है। लोकेश, क्या एक्सेलेंट सर्विस है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, हॉस्पिटल में मिलने आए, वहीं पर कैशलेस सेटलमेंट करवा दिया। आपकी छाती, आपकी नाक इस प्रकार की होनी चाहिए कि समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। गणेश जी की बड़ी नाक ये मैसेज देती है आपको कि आपका जो बिजनेस है उसमें ब्रांडिंग तब होगी जब आपके ऊपर कोई ब्लैक डॉट ना हो, कोई आपकी नेगेटिविटी ना हो समाज के अंदर। लोग ये नहीं कहा यार काहे का एजेंट है, कोई सर्विस तो देता नहीं, पॉलिसी पर। इसका उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। हमारे यहाँ पर जब भारत के अंदर IRDA ने बैंक वालों को भी इंश्योरेंस का बिजनेस करने का लाइसेंस दे दिया, तब वहां पर क्या हुआ दोस्तों? बैंक वालों ने पॉलिसी तो कर दी क्योंकि कस्टमर उनके साथ था, लेकिन सर्विस नहीं दे पाए। मैं कोई आलोचना निंदा नहीं कर रहा हूं बैंकों की, बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बैंकों की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं,
पर बैंक वालों ने क्या किया, केवल इंश्योरेंस पॉलिसी की और उन्होंने सर्विस की चिंता नहीं की। तो क्या हुआ, 2 साल 3 साल के बाद जब क्लेम का समय आया, कोई एंडोर्समेंट का समय आया, तो बैंक ने जब हाथ उठा दिए तो आखिरी में वो कस्टमर हमारे जैसे जो अभिकर्ता हैं, हमारे जैसे जो एजेंट हैं, लौट के उन्हीं के पास आया कि भैया मेरी पॉलिसी कर दो, मैंने बैंक में गलती से करवा ली थी, अब मैं नहीं जाऊंगा, आप मेरी पॉलिसी कर दीजिए। इसलिए अपनी नाक ऊंची रखिएगा, अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखिएगा। गणेश जी की नाक का मतलब एक ही है कि आप अपनी इज्जत को बना के रखिएगा। ये बहुत जरूरी है मार्केटिंग के अंदर। इसके बाद दोस्तों मैं आता हूं, आप देखें कि गणेश जी का जो एक दांत उनका बाहर निकला हुआ है। दांत बाहर निकलने का क्या मतलब है? कभी किसी ने कहा हाथी के दांत खाने के ओर हैं और दिखाने के ओर। इसका भाव क्या है दोस्तों? इसका भाव ये है कि अगर आप, किसी ने कहा है कि जो सीधे पेड़ होते हैं, सीधे पेड़ होते हैं, सबसे पहले वो काटे जाते हैं, जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं उनको नहीं काटा जाता कभी। तो इतना सरल मत बनना कि कोई भी आपको बेवकूफ बना दे, कोई भी आपको बेवकूफ बना दे। तो थोड़ा बहुत एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार एक गांव के अंदर एक सांप रहा करते था, और वो जो भी वहां से पास से निकलता तो वो अजगर, वो सांप उसको फुफकारता, उसको धमकाता। एक बार उस गांव में एक संत आया, और संत ने आके, जब संत इस सांप के पास से, अजगर के पास से निकले, तो अजगर ने संत को भी उसको फुफकारा। तो अजगर ने, संत ने उनको समझाया सांप को, नहीं, क्रोध करना छोड़ दो, गुस्सा करना छोड़ दो। संत की बात अजगर ने मान ली और कहा ठीक है, आज के बाद क्रोध करना बंद, क्रोध नहीं करूंगा। और संत से वादा कर लिया। संत भी चले गए, 1 हफ्ता 10 दिन गांव में रहे। जब वापसी लौटने लगे तो देखते हैं वही अजगर लहू लुहान हुआ पड़ा है। उससे पूछा, भाई तुम्हारी हालत ऐसी किसने कर दी? तो उसने कहा आपने ही करवाई है ये मेरी हालत। मैंने क्यों करवाई है? तो आपने कहा था क्रोध मत करना, फुफकारना मत, तो मैंने बंद कर दिया। लोगों ने मुझे पत्थर मार मार के मेरी ये हालत कर दी, गांव के लोगों ने। तो संत ने कहा था, मैंने ये कहा था काटना मत, फुफकारना नहीं, ये नहीं बोला था। तुमने मेरी बात को समझा नहीं। मैंने काटने के लिए मना किया था, क्रोध करने के लिए मना थोड़ी किया था। तुम्हारे को फुफकारते रहते। तो वैसे ही ये जो एक दांत बाहर निकाल रखा है गणेश जी महाराज ने, इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपका इमेज ऐसा होना चाहिए दोस्तों, स्टाफ के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, क्लेम डिपार्टमेंट के बीच में, कि इसका काम रोका तो हल्ला कर देगा, आरटीआई लगा देगा, ऊपर कंप्लेंट कर देगा। इतना आसान नहीं है पंकज अग्रवाल के काम को रोकना, इतना आसान नहीं है लोकेश के काम को रोकना, इतना आसान नहीं है राजेश चेतन के काम को रोकना। इतना सा थोड़ा सा आपका भय होना जरूरी है मार्केटिंग के अंदर। अगर ये नहीं रहा तो आपको लोग जीने नहीं देंगे। ये भारत का सिस्टम इतना करप्ट है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं आरटीआई का एक्सपर्ट हूं, मैंने आरटीआई में बड़े बड़े लोग ध्वस्त किए हैं। और एक बार मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस के किसी अपने ऑफिस में किसी काम से गया। एसडीएम साहब बिल्कुल नए नए आए थे, हमको जानते नहीं थे हम कौन है। तो मैंने उनसे 2-3 क्लेम के बारे में पूछ लिया, तो वो भड़क गए मेरे ऊपर। तो मैंने कहा सर ठीक है, कोई बात, मैं आपसे बाद में बात करूँ। दोस्तों मैंने अपना क्लेम रजिस्टर निकाला, उसमें 14 क्लेम की मैंने एक लिस्ट बनाई और एक सिंगल आरटीआई लगाई, काइंडली गिव मी द स्टेटस ऑफ दीज क्लेम। और 14 के 14 क्लेम मैंने एक साथ तो आरटीआई में लगाए। 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाया और ओरिएंटल को मैंने आरटीआई भेज दी। आरटीआई भेजी, जैसे ही मेरी आरटीआई वहां पहुंची, एसडीएम साहब का फोन आ गया, राजेश चेतन, हाँ ये क्यों किया? मैंने कहा सर ये आपने करवाया, मैंने नहीं किया। मैं तो आपके साथ अच्छे मन से मिलने आया था, आपने ठीक से बिहेव नहीं किया, अब आप इस तरह से जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं। और दोस्तों उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो एसडीएम साहब जब तक ओरिएंटल इंश्योरेंस में मेरे ऑफिस में रहे, उनकी मेरी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, और मेरे काम को वो सबसे पहले सुनते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से
कि गणेश जी का ये बाहर निकला हुआ दांत ये कहता है कि सामने वाला अपने को बेवकूफ ना बना सके, अपने को मतलब अपने काम को रोक ना सके, इतना डर रहना बहुत जरूरी है। तुलसीदास ने भी कहा है, भय भी न कोई न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती। ये गणेश जी का जो बाहर निकला हुआ दांत है ये हमको बताता है। दोस्तों, गणेश जी के हाथ 4 हैं, 4 हाथ हैं। 4 हाथ का क्या मतलब है? 4 हाथ का मतलब ये है कि ज्यादा काम करो, 4 men, आप समझिए, ज्यादा श्रम करना है, ज्यादा मीटिंग करनी है, ज्यादा लोगों से मिलना है। 4 हाथ का मतलब ये है कि अपने को ज्यादा मेहनत करनी है। अपना काम ही मार्केटिंग का है, ज्यादा दौड़ेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे। मार्केटिंग वाले लोगों को दो जगह ही मिलना चाहिए, तीसरी जगह कोई काम नहीं है। या तो विद कस्टमर हो, हम लोग कस्टमर के साथ हो, क्लाइंट के साथ हो, या विद कॉम्पिटिटर हो। जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो भी हमको बहुत कुछ सिखाता है। तो अपने को अपने 2 ही जगह है, अपने को या तो जाना है क्लाइंट के पास मीटिंग करने के लिए, या जाना है अपने कॉम्पिटिटर के पास। तीसरी जगह हमको नहीं जाना। ये 4 हाथ गणेश जी के ये बताते हैं कि आप श्रम कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। ये गणेश जी का जो गणेश जी तो मोदक बहुत प्रिय है। आप देखेंगे उनको लड्डू बहुत प्रिय है, मोदक बहुत प्रिय है। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब है? मिठास रखिए, जुबान पे मिठास रखिए, रिश्तों में मिठास रखिए। मार्केटिंग में आप कहीं किसी से मिलने जाएं तो खाली मत जाइए, कुछ प्रसाद लेके जाइए, उसके पास कुछ डब्बा लेके जाइए और ये प्रसाद बांटते रहिएगा। गणेश जी का जो ये मोदक का प्रसाद है वो ये कहता है, मीठापन रखिए, रिश्तों में भी, समाज में भी, परिवार में भी प्रसाद बांटते रहिएगा। और मार्केटिंग में भी यही बात है दोस्तों, आप किसी से मिलने जाएं कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। आप कस्टमर के पास जाएं, क्लाइंट के पास जाएं, प्रोस्पेक्ट के पास जाएं, खाली हाथ नहीं जाना। गणेश जी का मोदक ये बताता है कि हमेशा बांटते रहिए, लोगों के पास जाइए। आप कोई चीज जब अकेले खाएंगे तो वह विषाद हो जाएगी, और कोई चीज जब आप बांट के खाएंगे तो वो प्रसाद हो जाएगी। हमको समाज में प्रसाद बांटना है, विषाद नहीं बांटना, ये आप ध्यान रखिएगा। गणेश जी की सवारी देखिए क्या है, चूहा है। चूहा चूहा बहुत तेज सवार होता है दोस्तों। चूहे को आप जल्दी से पकड़ नहीं सकते, वो कहीं भी घुस जाता है, कहीं भी किसी भी जगह पहुंच जाएगा। उसकी स्पीड इतनी होती है, इतना तेज तर्रार होता है। मार्केटिंग के लोगों को भी अपने पाँव को रोकना नहीं है, चूहे पर सवारी रखनी है, हम कहीं भी घुस सकें। मार्केटिंग ये सिखाती है गणेश, और चूहा हमको ये सिखाता है हम कोल्ड कन्वर्सिंग में भी जा सकें। रात को अगर थाना खुला है तो थाने में भी घुसकर हम इंश्योरेंस बेच सकें, हम अपनी बात कर सकें। ये गणेश जी का चूहा ये हमको बताता है कि हम कहीं भी जा सकें, किसी भी परिस्थिति में जा सकें। 130 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की। अगर आप चूहा ये कहते हैं गणेश जी का कि 130 करोड़ लोगों पर भी जाया जा सकता है, क्षमता आपकी है, कैपेसिटी आपकी है कि आप वहां किस तरह से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बात तो मैं बहुत देर और भी कर सकता हूं आपसे, लेकिन इतनी ही प्रार्थना है। गणेश जी के विषय पर मैं 4-5 घंटे भी बोल सकता हूँ, ये मेरा प्रिय विषय है, पर समय की सीमाएं हैं। मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ जो सूत्र आपको बताए हैं, तो कुछ मंत्र आपको बताए हैं, इन मंत्रों को जीवन में अपनाएं। और गणेश जी के एक चित्र आप अपने घर में और अपने कार्यालय में लगाएं। आप गणेश जी से दोस्ती कर लीजिए, उनको अपना मेंटोर बना लीजिए। और जब उनको आप मेंटोर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि मार्केटिंग आपके भीतर अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। और हम दिवाली के दिन भी गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? रिद्धि सिद्धि के देवता है गणेश। और जब आप गणेश जी को अपना मेंटोर बना लेंगे, गणेश जी को अपना दोस्त बना लेंगे, तो लक्ष्मी माता तो आपके पास अपने आप आ जाएगी, आपके पास चलेगी, आपके साथ चलेगी, आपके साथ रहेगी। बस गणेश जी को आप साध लीजिए, गणेश जी को स्वीकार कर लीजिए, लक्ष्मी माता आपके साथ साथ रहने वाली है। दोस्तों, चलते चलते एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात को मैं पूर्ण करूंगा। और ये कहानी कुछ यूं है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक शब्द बहुत खराब है, वो है पोस्टपोन। हम लोग ये मेहनत नहीं करना चाहते,
हम लोग भी मीटिंग करना नहीं चाहते, हम लोग भी मिलना नहीं चाहते, और हमारा ग्राहक भी ऐसा ही है, वो भी पोस्टपोन करता रहता है। दुनिया में इंश्योरेंस को सबसे लिस्ट प्रायोरिटी का सब्जेक्ट बना दिया लोगों ने। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ, ये कहानी शायद आपके जीवन को बदल दे। कहानी कुछ यूं है दोस्तों कि रावण धरती पर पड़ा है और भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाके इससे कुछ सीख के आओ, ये महाज्ञानी है। लक्ष्मण गए रावण के पास और जाके बोले रावण से, जीवन कैसा जिया। रावण ने बोलना शुरू किया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, जीवन जीने का एक ही तरीका है, अच्छा विचार, अच्छा ख्याल, अच्छी भावना कोई मन में आ जाए, अच्छा काम कोई मन में आ जाए, उसको उसी दिन कर लेना, उसको उसी दिन कर लेना। और कोई बुरा ख्याल आ जाए, कोई बुरा विचार आ जाए, कोई बुरी भावना आ जाए, कोई बुरा काम मन में आ जाए, उसको पोस्टपोन कर देना, जीवन बदल जाएगा। रावण बोल रहा, रावण कह रहा कि मैं 3 काम करना चाहता था। कौन कौन से? धरती से आकाश तक की सीढ़ी लगा दूंगा। कितना अच्छा होता, मरने की जरूरत ही नहीं थी, सीढ़ी से जाओ स्वर्ग में, सीढ़ी से स्वर्ग वापस आ जाओ। तो बोला मेरा ये टारगेट था कि धरती से आकाश तक की सीढ़ी लगा दूंगा। दूसरा टारगेट क्या था? समुद्र का पानी मीठा कर दूंगा। अगर ये कर पाता रावण तो आज पानी की समस्या नहीं रहती, समुद्र का पानी मीठा कर दूंगा। और तीसरी बात कौन सी रावण ने कही? सोने में सुगंध पैदा कर दूंगा। रावण ने कहा कि मैं ये तीनों काम कर सकता था, पर मैं बुरे काम करता रहा और अच्छे कामों को पोस्टपोन करता रहा, और आज मैं धरती पर पड़ा हूं, कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अच्छे काम, भले काम, लोगों की सहायता करने के काम करते रहिएगा। मुझे डॉक्टर कुंवर बेटिया ने, हमारे कवि हैं, उनकी 4 लाइनें याद आ गई है। अपनी आंखों को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, नेक कामों में कभी देर मत करना साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मुझे सुना, इंडियन फेडरेशन ऑफ जर्नल इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, लोकेश जी का खास तौर पे, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैंने कुछ अच्छा बोला होगा तो मुझे धन्यवाद कीजिए, कुछ बुरा बोला हो तो लोकेश जी से जाके आप निपट लेना। सारी गलती लोकेश जी की है मुझे बुलाने की, गलती विकास जी की है मुझे बुलाने की। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आने के लिए। आकर आप सबका दिल से धन्यवाद। और आज आपने मुझे चार्ज कर दिया। मैं कोविड से लड़ने के बाद आज पहली बार बोल रहा हूँ, तो मेरे फेफड़े कितना काम कर रहे हैं, ये भी मेरी टेस्टिंग हो गई कि मैं बोल सकता हूँ, अब आपसे बात कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी जब आपको कोविड हुआ था तब हम प्रार्थना कर रहे थे आप ठीक होके जल्द से जल्द आए, एंड वी आर सीन योर एक्टिविटीज सर। आपको तो आपको और एक विषय आपको शेयर करना चाहता हूँ। हमने 2-3 महीने से जब से कोविड शुरू हुआ, हर रोज विकास जी कहते थे मैं राजेश चेतन जी के साथ कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूँ, ये कार्यक्रम हो रहा है, वो कार्यक्रम हो रहा है। मैंने सोचा अरे भाई क्या कर रहे हैं सुबह हर रोज 15 दिन 20 दिन सर। एंड वी स्टार्टेड आवर मीटिंग ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म। हमारा कन्फेडरेशन का शुरू हुआ और हमारा फेडरेशन का शुरू हुआ, सभी काम हमने शुरू कर दिया। तो सर जैसे पहले हमारे पूज्य ज्ञानवत्सल दास जी का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद रमेश कुमार धमारी साहब आए थे और एक माली श्रीनिवासन जी आए थे। लास्ट वीक हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएमडी जी श्रीनिवासन साहब आए थे। आज आप हैं कि जो सिलसिला चल रहा है, और कल से सर सुपर संडे के एक 6 संडेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। ये सब प्रोग्राम का आइडिया हमको आया आपके कार्यक्रम से, आपने हमको प्रेरणा दिया, इसलिए हम हमारा कन्फेडरेशन की तरफ से और IFJA की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर, इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ आवर प्रोग्राम। दोस्तों, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।
आपका raise your hand, so I will unmute them. आप पूछ सकते हैं। रिक्वेस्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र शाह जी कुछ बात करें हमारे राजेश जी के बारे में थोड़ा। Yes, sir. राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए सर, बोलिए, स्वागत है। हाँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं लोग आपके बारे में बोल रहे थे, ऐसा गणेश जी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जी जी जी। और एक अभिकर्ता के नाते और आप इतना सारा सामाजिक काम भी कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहा है हमको। वो आपका सब इन्होंने पंकज जी ने जो परिचय दिया, ये इतना सारा काम है, आप कैसे करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इसको कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं? और साथ में आप बोल रहे थे 5 करोड़ का जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपका आपके पास है। जी जी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम हमारे लिए प्रेरणा का एक विषय है ये सब। तो हमको आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये गणेश जी के बारे में सिंपल आप जो मार्केटिंग का टेक्निक बताया है, इसमें कोई प्रोडक्ट बेचने का बात नहीं है। एक इंश्योरेंस एजेंट अपने आप को कैसे आप प्रिपेयर कर सकता है, अपने आप को कैसे आप रेडी कर लेगा, मानसिक रीति से कैसे प्रिपेयर हो सकता है। इसी स्पेशलिटी के साथ अगर हम फील्ड में जाएंगे, जो सक्सेसफुल एजेंट्स है, आप जो ये आइटम जो आपने तो इंफॉर्मेशन दिया, इसमें थोड़ा कुछ ना कुछ इसमें इम्प्लीमेंट वो लोग करेंगे, इसलिए सक्सेसफुल होते रहते हैं। तो मेरे तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका ये जो सामाजिक काम है, आप ऐसे ही आगे बढ़ाएं और आपकी तरफ से बहुत लोगों को इसका हेल्प हो, और हमारे एसोसिएशन की तरफ से और आगे भी कुछ प्रोग्राम में हम आपको बुलाएंगे, आप जरूर आइए, हमारे एजेंट को प्रेरणा दीजिए। इसके साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई क्वेश्चन पूछना है तो लोग पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। सर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कैन रेज योर हैंड्स इन व्हाट्सएप, रिएक्शंस में है, आप यू कैन रेज योर हैंड्स, सो आई विल अनम्यूट देम। हेलो जी जी बोलिए। हाँ राजेश भाई, एक बात मैं जानना चाहूंगा, हो सकता है हम सबके लिए बड़ी अच्छी हो ये बात, कि जिस वक्त आप गंगाराम हॉस्पिटल में थे, राइट, जी और कोविड से जूझ रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा था? मतलब किस तरह की थॉट्स आपके मन में आ रही थी, और कैसे आपने अपनी पॉजिटिविटी बना के रखी? जी, अच्छा सवाल किया है आपने। ये बात मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा पंकज भाई। हेलो, मैं चुप हो गया और मेरा सवाल खत्म हो गया। आपको ये सवाल का जवाब देना है कि किस तरह से आपने वो पॉजिटिव थॉट्स बना के रखी, और आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा था, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोविड से जूझ रहे थे तो मतलब आपके मन में क्या चल रहा था, ये जानना मैं चाहता हूँ एक्चुअली। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, इस समय हॉस्पिटल का तो माहौल है वो बहुत खराब है, और मैं जिस वार्ड में था वहाँ हर दिन कोई ना कोई डेथ हो रही थी लगातार। लेकिन दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी मेरी पत्नी 2.5 साल कैंसर से जूझ के वो संसार छोड़ के चली गई। 2.5 साल मैं कैंसर से लड़ा अपनी पत्नी के रोग से। तो उस 2.5 साल में मैं काफी सीख गया, और मुझे कैसे लड़ाई लड़नी है ये मैं सीख गया था। एक तो उसने मुझे बहुत मजबूत बना दिया था, और दूसरा क्या है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और मेरी ट्रेनिंग आरएसएस में हुई है बचपन से ही। तो उस ट्रेनिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं एक साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, तो पढ़ता रहता हूँ, पॉजिटिविटी से जीना मुझे आता है, और ये पॉजिटिविटी मैंने अपनी मेंटेन रखी। वहाँ नेगेटिव माहौल था, मेरी शुगर 400 हो गई, बुखार 3 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा था, पर मेरे थॉट, मेरे विचार ने और मेरे दिमाग ने कहा कि मुझे लड़के जिंदा रहकर वापस आना है, और मुझे अपने जो काम है वो पूरे करने हैं। और मैं लगातार बस इस थॉट में रहा। और दोस्तों, मैं इस लड़ाई को लड़के, डॉक्टर ने मुझे एक दिन कहा कि बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारी शुगर 400 है, 3 डिग्री बुखार है, लेकिन ऑक्सीजन 94 मेंटेन है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ बहुत कम आते हैं
जो इस प्रकार के पेशेंट हैं कि इस हालत में भी ऑक्सीजन 94 मेंटेन आपकी चल रही है। तो दोस्तों, और सबसे बड़ी बात बता दूं पंकज भाई, हजारों लोगों की दुआएं जो कर रहे थे, अगर आप मेरी फेसबुक पर देखेंगे तो एक वीडियो जो मैंने डाला था, 22,000 लोगों ने उसको देखा है, हजारों लोगों ने उससे अपनी दुआएं मुझे दी है, प्रार्थना भगवान से की है। तो वो मेरी ताकत थी, वो मेरी शक्ति थी जो मैं बच्चा था। पॉजिटिविटी। जी, थैंक यू सर। राजेश जी, मैं भी संघ से जुड़ा हूँ, 11 साल प्रचारक के नाते मैं काम किया है संघ में। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्रदेश विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री था कर्नाटक में। अच्छा, मैं संस्कार भारती दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हूँ। देखिए, वो उससे मैं समझ गया आपका हाँ, संस्कार भारती का इन्होंने बताया ना उसको। जी, बहुत धन्यवाद सर। मैं अभी हमारे कर्नाटक के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार जी से अनुरोध करता हूँ, वो वोट ऑफ थैंक्स करें, वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। Thank you. Thank you, Lokesh ji. Yes, sir. Please, sir. Go ahead, sir. Thanks is such a small word, but it has a world of meaning in it. I would like to thank Shri Rajesh Chetanji today for his positive thoughts, having battled COVID and come and spoke about marketing and also about the theory of Ganesh ji in the methodology of marketing. During his rest time, he has given us such a wonderful input on marketing. I really thank him from the bottom of my heart. Thank you, Rajesh Chetanji. Thank you, sir. Thank you. I would like to thank Hirendraji Shah, our national president, Lokesh ji, our national secretary, and all national leaders, Rajendra Singh ji Rathod, and Vikas, especially Vikas Bharadwaj ji, for having connected us to such a wonderful personality, Rajesh Chetanji. I would also like to thank Pankaj Agarwal for introducing Rajesh Chetanji to us. Otherwise, we wouldn't have known the multifaceted personality. I would like to thank Chandrasekhar ji for introducing and welcoming all the delegates today on this webinar. Lastly, I would like to thank all the leaders in the Confederation